welcome to Nyaya Academy. So today we are going to talk about anti-defection law. If you must have watched the news, then you definitely would have come across the issue that has been uh, constantly circulating in the news about the Rajasthan government crisis, where Sachin Pilot and some of his fellow MLAs, they were registering their protest about the way the administration was being run by Ashok Gehlot, the current CM of Rajasthan. So all this issue around defection came into light and came into news again because of this. See, last year in 2019 कर्नाटका की असेंबली में, कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ एमएलएज ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था एंड इवन देन ये डिफेक्शन का मुद्दा जो है बहुत न्यूज़ में था. और 2020 में राजस्थान में जो हो रहा है, दैट हैज़ ब्रॉट अटेंशन एंड लाइट टू दिस टॉपिक अगेन. सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस, और जो भी इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इस लॉ में एंड द करंट इश्यूज दैट आर इन्वॉल्व, लूप होल्स क्या है लॉ में, कंट्रोवर्सीज, सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स. सी, पहले भी यूपीएससी ने मेंस में डिफेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं. सो हम वो क्वेश्चंस देखेंगे एंड जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उन पर कैसे सवाल बन सकता है एंड किस तरीके के क्वेश्चंस आने पॉसिबल हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे. सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द टेबल ऑफ कंटेंट्स. देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर डिफेक्शन, what is not a defection, what does not amount to defection, advantages क्या है law की, what are the loopholes and problems in the law. Next we'll find out how effective the law is, and then we will go on to talk about फ्री स्पीच वर्सेस डिफेक्शन. देखिए, ये जो फ्री स्पीच वर्सेस डिफेक्शन का टॉपिक है, दिस इज़ वेरी लाइक्ड बाय यूपीएससी. इस पर सवाल पहले भी पूछा हुआ है एंड दिस इज़ अगेन इन न्यूज़. जैसा कि मैंने आपको बताया 2019 में जो कर्नाटका असेंबली में जो देखने को मिला. एंड देन विल टॉक अबाउट रेजिग्नेशन वर्सेस डिफेक्शन, हाउ रेजिग्नेशन एंड डिफेक्शन आर डिफरेंट और रिलेटेड. सो विल टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑफ दैट बिकॉज ये दोनों टॉपिक्स जो हैं यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं. एंड देन वी विल सी द recommendations that several committees have given to improve the law. See, as I have told you earlier, there are certain loopholes in the law which need to be corrected. So recommendations have been given by various experts and we will see what are those recommendations. And lastly, we will study in detail the Karnataka 2019 defection case study. So शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अडू. व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ? सी, डिफेक्शन के खिलाफ ये लॉ बनाया गया था. डिफेक्शन क्या होता है? व्हेन अ कैंडिडेट फ्रॉम अ पार्टी, सपोज दिस इज अ कैंडिडेट एंड ही इज फ्रॉम बीजेपी and he changes his party and he join hands with Congress. So this act is known as defection. Now you have understood. So the evil of political defections, this has been a matter of national concern. पूरे देश के लिए चिंता का विषय है बिकॉज इससे स्टेबिलिटी जो है सरकार में नहीं रहती. इट हैज़ अ पावर टू शेक द वेरी फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी इफ नॉट चेक्ड. सो इसीलिए लोकसभा ने 1967 में एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, नेम्ड कमेटी ऑन डिफेक्शन, एंड दिस कमेटी वाज asked to make certain recommendations for outlawing defections. एंड जो recommendations इस कमेटी ने दी थी उसके बेसिस पर एक 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में पास किया गया. And this 52nd Constitutional Amendment Act made changes to certain articles in the Constitution, namely 101, 102, 190, 191, and besides making changes to these articles, there was also added 10th schedule to the Constitution. So basically 10th schedule जो है हमारे Constitution का, it deals with anti-defection law. So do remember this. चलिए, now we have understood what is this anti-defection law, what amounts to defection. Let's quickly understand what was the object behind the law. As I told you, defection certainly has the power to shake the foundations of a democracy. It makes government
unstable. So the intention of this law, intention behind this law was to check corruption, हॉर्स ट्रेडिंग इन पार्लियामेंट देखिए हॉर्स ट्रेडिंग इन पार्लियामेंट मींस जैसे बीजेपी जो है वो कांग्रेस के एमएलए खरीद रही है टू गेन मेजॉरिटी, कांग्रेस जो है वो बीजेपी के एमएलए को डिफेक्ट करने के लिए इंड्यूस कर रहे हैं. सो ऑल दिस वाज हैपनिंग एंड दिस लॉ also gained attention by this catchphrase Aya Ram Gaya Ram, and I'll tell you why. Because in 1967 a MLA from Haryana named Gaya Lal, he changed his party 3 times in one day. So इससे परेशान होकर जो राजीव गांधी हैं उन्होंने 1985 में ये लॉ बनाने पर जोर दिया and hence this law was made. So the law disallows MPs and MLAs both to switch parties after elections. कि इलेक्शन जीतने के बाद आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते. And it also makes the members to follow the whips issued by the party. So this might be a new word that you are learning today, whip. See, whip एक ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा पर्सन है पार्टी के अंदर जिसकी कमांड या जिसकी डायरेक्शन बाकी सभी मेंबर्स को फॉलो करनी है. सो whip एक्चुअली देखिए whip इज एक्चुअली मीन्स इंग्लिश में एक ऐसे छड़ी टाइप, ठीक है. तो जिसके हाथ में छड़ी है वो जो बोलेगा सबको मानना पड़ेगा. सो whip इज एक्चुअली अ पर्सन who is in command, who gives certain commands or directions which all the party members have to follow. So supposedly जो बीजेपी पार्टी का whip है उसने बोला कि कोई particular law है और सभी ने उसके फेवर में वोट डालनी है. So everybody has to follow the commands of the whip, and if they do not do so, this will amount to defection and hence they will be disqualified. And to talk about to whom this law is applicable. See, this anti-defection law is applicable to both members of parliament and members of state legislative assemblies. तो हम कह सकते हैं कि MPs and MLAs both are covered under this law. दोनों पर अप्लाई होता है. Now let's understand the grounds for disqualification. किस किस आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है आपको इस लॉ के अंडर. So if a member of a house belonging to any political party voluntarily gives up the membership of his political party. So see, voluntary is the word that we have to emphasize here. कि अपनी मर्जी से अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से जिस पार्टी से एसोसिएटेड है उसकी मेंबरशिप गिव अप कर देता है. सो इट विल अमाउंट टू डिफेक्शन एंड हेंस यू विल बी डिस्क्वालीफाइड. इफ इट डिसओबेज द डायरेक्टिव्स ऑफ एनी पार्टी लीडरशिप ऑन अ वोट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर विप ने कोई डायरेक्शन या कमांड दिया है और एनी मेंबर ऑफ द पार्टी उस डायरेक्शन या कमांड को फॉलो नहीं करता या तो उसके खिलाफ वोट डालते हैं या अब्सटेन करते हैं वोट करने से, सो दे कैन लूज देयर मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड ये डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा. लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका कि अगर वो मेंबर प्रायर परमिशन ले लेता है टू नॉट वोट और टू वोट अगेंस्ट the commands of the wishes of the whip, so his act will be condoned, but 15 days पहले उसको ये permission जो है लेनी पड़ेगी. And if he does so, if he has that permission, he or she will not be disqualified. Another ground for disqualification is that if an independent candidate joins a political party after the election. See, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी अलाउड है कि वो भी रन कर सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस. सो अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है एंड जीतने के बाद वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, दिस वुड ऑल्सो अमाउंट to defection and will be a ground for disqualification. Similarly, nominated members अगर 6 महीने बाद कोई किसी पार्टी के मेंबर बन जाते हैं, this will also be a ground for their disqualification. Now let's understand what is not defection या exceptions क्या है इस law की. So the very first exception that is mentioned in the law is merger of a political party with another political party. देखिए, the law allows a party to merge with or into another party provided at least 2/3 of the legislators are in the favor of merger. So suppose ये एक पार्टी है बीजेपी एंड ये एक पार्टी है जेजेपी. अगर ये जेजेपी पार्टी बीजेपी में मर्ज हो जाती है तो इस पार्टी के सारे मेंबर्स अब बीजेपी के मेंबर्स हो जाएंगे. सो ऐसे अगर ये पार्टी चेंज हो रही है, दिस वुड नॉट अमाउंट टू डिफेक्शन प्रोवाइडेड कि इस पार्टी के 2/3 एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स इस मर्जर से अग्री कर रहे हैं.
So in such scenario, neither the members who decide to merge nor the ones who stay with the original party will face disqualification. देखिए, हो सकता है कि कुछ members जो हैं वो इस merger को नापसंद करें, वो इसके खिलाफ हो, they do not want to merge, they want to stay with their original party. So अगर ऐसा है तो ये defection नहीं माना जाएगा. And the landmark case dealing with this merger of political party is Kehota Holohu versus Zakilu AIR 1993. इस केस को हम डिटेल में अभी आगे देखेंगे. So next exception या हम कहें कि क्या डिफेक्शन नहीं होगा, तो उसमें दूसरा केस जो हमारे पास है that is exemption for officers of the house. So first of all you have to understand who are the officers of the house. See, officers of the house refers to speaker or deputy speaker in case of Lok Sabha, and chairman and deputy chairman in case of Rajya Sabha. So these four are popularly known as officers of the house. And in case of state legislative assembly, it is again speaker and deputy speaker, chairman and deputy chairman. Chaliye. So a member of a political party having been elected as an officer of the house shall not be disqualified by reason of his election to such office if he voluntarily gives up the membership of his party and does not rejoin that party. देखिए, स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोकसभा का लेते हैं. सो लोकसभा में देयर आर करंटली 545 जो मेंबर्स हैं, तो इनमें से एक स्पीकर चुना जाता है, स्पीकर के तौर पे इलेक्ट होता है. So when a person is elected as speaker, suppose that person belongs to BJP party or supposedly he belongs to Congress party. So जब ये स्पीकर बनते हैं, बीजेपी या कांग्रेस का कोई भी एमपी अगर स्पीकर के तौर पे चुना जाता है तो इनको अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी. रीजन बीइंग स्पीकर इज सपोज्ड टू बी इम्पार्शियल, तो कोई भी पार्टी से बिलोंग नहीं करना चाहिए. इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल एंड हम कह सकते हैं कि पार्टिजन होना चाहिए. एंड टू डू सो, टू फुलफिल हिज ड्यूटीज इन एन इम्पार्शियल और पार्टिजन मैनर, ही शुड नॉट बी बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. सो द स्पीकर हैज़ टू गिव अप. तो जब वो स्पीकर बनेगा तो उसको अपनी पार्टी छोड़नी पड़ेगी, वॉलंटरीली छोड़नी पड़ेगी. सो अगर ऐसे वॉलंटरीली वो मेंबरशिप गिव अप करता है अपनी पार्टी की, सो यहाँ पर उनको एग्जेम्पशन मिली हुई है. दिस विल नॉट अमाउंट टू डिफेक्शन. एंड सपोज 5 ईयर्स तक वो स्पीकर के तौर पे उन्होंने सर्व किया है एंड देन इस पोस्ट से हटने के बाद या इस ऑफिस को छोड़ने के बाद ही अगेन जॉइन्स दिस पार्टी. सपोज बीजेपी के स्पीकर हैं तो बाद में फिर उन्होंने स्पीकर की जब कुर्सी छोड़ी तो बीजेपी की पार्टी फिर से ज्वाइन कर ली, तब भी उनको एग्जेम्पशन है. दिस विल नॉट अमाउंट टू डिफेक्शन. सो ये दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे डिफेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा. Now let's understand who decides the question of disqualification. We have understood कि अगर कोई MP या MLA defection करता है, this will be a ground for disqualification and they will be disqualified. So ये disqualify कौन करेगा, कौन decide करेगा कि ये इस MP या MLA को disqualify करना है या नहीं? So the answer is obvious, speaker या chairman. तो अगर लोकसभा के मेंबर हैं तो स्पीकर उनके डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करेगा. अगर चेयरमैन राज्यसभा का कोई एमपी है जिन्होंने डिफेक्शन किया है तो राज्यसभा का जो हेड है चेयरमैन, ही विल डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. सो दीज टू आर द अथॉरिटीज. See, speaker sits as a tribunal while deciding on defection cases, and all the proceedings in relation to this disqualification of a MP under the 10th schedule, they are deemed to be proceedings in parliament or in the state legislature. Hence no court has any jurisdiction. तो कोर्ट के पास यहाँ पर कंकरेंट जुरिस्डिक्शन नहीं है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन स्पीकर और चेयरमैन को दिया हुआ है. क्योंकि जब ये डिसाइड कर रहे हैं द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, दे आर एक्टिंग एज ट्राइब्यूनल्स. So no court has been given this jurisdiction to entertain the question of disqualification of any MP or MLA. But various expert committees have recommended that rather than the presiding officer here refers to the speaker or chairman, presiding officer of the house, the decision to disqualify a member should be made by the president in case of MPs and governor in case of MLAs on the advice of election commission. देखिए, बहुत सी एक्सपर्ट कमेटीज ने ये रिकमेंडेशन दिया है that this anti-defection law must be changed, and rather than having the speaker or chairman decide the question of disqualification, this decision to disqualify a member must be made by president in case of MPs and governor in case of MLAs on the advice of the election commission.
सो ये एक नया तरीका जो है बहुत सी एक्सपर्ट कमेटीज़ ने रिकमेंड किया है, जो करंटली फॉलो होता है उससे बिल्कुल अलग है। एंड ऑल्सो ये तरीका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में मैंशनड है ऑन डिस्क्वालिफिकेशन के केस में। सो यहाँ पर भी बोला गया है कि हमें यही प्रोसीजर जो है या ये तरीका फॉलो करना चाहिए, बट इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड येट। Now let's understand the judicial review of speaker decision. We know that speaker's decision is final, but कि होता होलहू का जो केस था, ये लैंडमार्क केस जो डिफेक्शन से रिलेटेड है, इस केस ने स्पीकर का जो फाइनल डिसीजन था इसको चैलेंज किया। सो द डिसीजन ऑफ द स्पीकर was final, but after this case कि होता होलहू, the case of 1992, this decision can be brought to court. तो अब judicial review allow कर दिया गया है। The law states that the decision is final and not subject to judicial review. देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ में clearly mentioned है that decision is final. Whose decision? Speaker's decision. And it cannot be subjected to judicial review. किसी भी कोर्ट में इसका judicial review नहीं हो सकता। But our learned Supreme Court struck down this part of the condition, and it held that there may not be any judicial intervention until the presiding officer gives his order. Basically, judiciary तभी intervene करेगी जब presiding officer अपना order देगा, और if it is found that the order or the decision given by the speaker or chairman is arbitrary or malafide or perverse. So in all these cases, his decision is subjected to judicial review. So the final decision is subject to appeal in the High Courts and Supreme Court. So this is the current situation. This is the present situation in case of Speaker's decision. So remember that the Speaker's decision is not final. After ki ho to holhu case, it is subjected to judicial review. For example, in 2015, the Hyderabad High Court, it refused to intervene after hearing a petition which alleged that there have been delay by the Telangana Assembly Speaker in acting against a member under the anti-defection law. देखिए, the Speaker will take his sweet time in deciding the question of disqualification. वो अपना पूरा टाइम लेंगे. You cannot put a limit on his time कि इतने टाइम के अंदर उनको डिसाइड करके बताना है. So when Speaker was taking his sweet time in the Telangana's Assembly Speaker, some MPs, they moved to the court. They moved to the Hyderabad High Court, but it refused to intervene. क्योंकि देखिए जब तक स्पीकर का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक इस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट्स में. Now let's talk about, does anti-defection law curtail the right of free speech of legislators? So see, anti-defection law और free speech का जो right है, how are they related? This issue was addressed by the 5-judge constitution bench in, again, the landmark case Kihoto Holohu versus Zakilu and others. And in this case, it was held that this law, this anti-defection law, does not violate any rights or freedoms or the basic structure of parliamentary democracy. क्या बोला, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसको, दैट हाउ डिफेक्शन एंड फ्री स्पीच आर रिलेटेड एंड कैसे ये लॉ हमारे या एमपीज एमएलएस के राइट ऑफ फ्री स्पीच को कर्टेल करता है, कर्ब करता है, लिमिट करता है. सो इसको समझेंगे इन लाइट ऑफ द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2013. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन क्विकली. द क्वेश्चन वाज, द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज हैज़ डिमिनिश्ड ओवर द ईयर्स, and as a result, healthy constructive debates on policy issues are not usually witnessed. How far can this be attributed to the anti-defection law, which was legislated but with a different intention? So it is a beautifully crafted question, and straightforward उसने anti-defection के बारे में नहीं पूछा कि grounds क्या होते हैं या what amounts to defection. यहाँ पे he is asking about the relation between defection and free speech. So you have to understand the question first कि वो पूछ क्या रहा है. देखिए ये करंट इश्यूज जो होते हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है पूछा गया, बिकॉज 2013 के आसपास there must have been some issue where defection has resulted in curtailment of the free speech of legislators. So वहीं से देखिए सवाल बनाकर पूछा हुआ है. Now let's understand how one must answer this question. So
we will understand how a defection affects freedom of speech. See, it affects the independence of MPs and MLAs. This law, it affects the independence of MPs and MLAs because see, हमने पढ़ा कि अगर विप के द्वारा दी गई कमांड या डायरेक्शन को कोई एमपी या एमएलए फॉलो नहीं करते हैं, उनके विशेस के अगेंस्ट अगर वो वोट डालते हैं या उनके कहे पर जहां वोट डालनी थी वहां नहीं डालते, सो इट विल अमाउंट टू डिफेक्शन एंड दस बी अ ग्राउंड फॉर देयर डिस्क्वालिफिकेशन. सो दे आर ऑलवेज वरीड कि अगर उन्होंने पार्टी के विशेस के हिसाब से वोट नहीं डाला या विप की बात नहीं मानी तो वो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा. सो दे आर ऑलवेज वरीड फॉर देयर सीट, दे आर ऑलवेज वरीड फॉर देयर डिस्क्वालिफिकेशन. तो यहाँ पे उनकी इंडिपेंडेंस एक तरह से ख़त्म हो जाती है. See, our constitution drafters, the makers of our constitution, they did not intend to give the control of the members to political parties. लेकिन इस एंटी डिफेक्शन लॉ ने क्या किया, ये लॉ जो 1985 में आया था, इसने एमपीज और एमएलएज का कंट्रोल पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में दे दिया. सो पार्टीज अब डिसाइड करेंगे कि एमपी एमएलएज किस मुद्दे पर वोट डालेंगे, किस मुद्दे पर वोट नहीं डालेंगे, किसके फेवर में डालेंगे, किसके अगेंस्ट डालेंगे. सो उनकी अपनी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है. देयर फ्री थिंकिंग, देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज curtailed. See, many members they want to speak up their mind and conviction. And अगर ऐसा होता है, if they are allowed to freely speak their mind with conviction, it will lead to more discussion, and more discussion will thus lead to better debates and better solutions in parliament. लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ इस पूरे चीज़ के खिलाफ जाता है. डिबेट्स सॉल्यूशंस तभी पॉसिबल हैं व्हेन एवरीबॉडी इज अलाउड टू स्पीक देयर माइंड. बट डिफेक्शन का जो लॉ है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, बिकॉज एमपीज और एमएलएज जो हैं वो पार्टीज़ के विप या अपनी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनके हिसाब से ही बोलेंगे, उनके हिसाब से ही करेंगे. सो देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर एमपीज और एमएलएज टू रिसर्च एंड अंडरस्टैंड ऑन पॉलिसीज. एंड दिस लॉ ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स अ लेजिस्लेटर फ्रॉम वोटिंग इन लाइन विद हिज कॉन्शियंस, judgment and interest of his electorate. See, we have to remember that MLAs and MPs, they represent their constituencies. They represent the electorate from where they have been elected and they represent their interest. लेकिन अगर वो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर अपनी पार्टी का इंटरेस्ट ऊपर रखते हैं and they are voting against their conscience, this will definitely shake the foundations of our democracy. So all these reasons, all these issues show how defection curtails the right of free speech of the MPs and MLAs or our legislators. So this is a very serious issue and cause of worry, and this certainly calls for certain improvements and recommendations or amendments to be made in this anti-defection law. Now let's understand the loopholes and problems in the anti-defection law. See, as I have told you earlier, that this law is not like concrete and not completely successful, not completely effective. There are certain loopholes and problems which have been exploited by legislators. So the very first problem that we see is that there can be certain genuine cases. There are genuine cases where individuals, MPs, or maybe 6 to 10 MPs say are, they are genuinely not convinced by the line taken by their political party. So they're not happy with the decision taken by their political party and they do not want to vote in its favor. So the question here arises that should they kill his or her conscience and still vote by the wishes of their political party and ignore the interest of their constituencies completely? The next loophole or the next problem that we see in anti-defection law is that it goes against Article 105 Clause 2 and Article 194 Clause 2. See, these two articles, they are related with parliamentary privileges. And these two articles provide complete freedom of speech to MPs and also give the protection to MPs and MLAs from any sort of consequences for anything they've said or vote given in the houses. But
एंटी डिफेक्शन लॉ गोज अगेंस्ट दिस बिकॉज अगर कोई एमपी और एमएलएज अपनी पार्टी के विशेष के खिलाफ जाकर वोट करते हैं या कुछ भी ऐसा कहते हैं जो उनकी पार्टी के विशेष के खिलाफ है, सो उनको डिफेक्शन का डर रहता है हमेशा. एंड द थर्ड प्रॉब्लम दैट वी आर लाइक सीइंग इज very much importance is given to the speaker. So in many instances, speakers have not acted as a neutral person or in a neutral manner, and their partisan conduct had lowered the dignity of the office, which is why their decisions are questioned in the courts. So these are certain problems that have been encountered in the past years, and we'll discuss about this more in brief. So I hope you've understood the loopholes and problems in this law. Now let's understand a very important question, that is there a time limit within which the presiding officer has to decide? See, अभी तक हमने देख लिया है कि स्पीकर और चेयरमैन का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है. ही इज़ द वन, स्पीकर और चेयरमैन, दे आर द वन दैट हैव टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और से एमएलए. सो द क्वेश्चन इज़ कि क्या कोई टाइम लिमिट है, कोई डेडलाइन है जिसके अंदर अंदर उन्हें इस डिसीजन पर वर्डिक्ट देना है? सी, द एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट स्पेसिफाई अ टाइम पीरियड. तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कहीं कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दिया गया है कि इतने टाइम के अंदर अंदर उन्हें इस डिस्क्वालिफिकेशन प्ली पर डिसाइड करना है. Given that the courts can only intervene only after the presiding officer has decided on the matter. देखिए, कोर्ट्स जो है तभी इंटरवीन कर सकती हैं जब एक बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने डिसाइड कर दिया. And there have been several cases where the courts have expressed concerns about the unnecessary delay in deciding such petitions. Because in one case, स्पीकर ने करीबन 2 to 3 years ले लिए थे डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर पर डिसाइड करने के लिए. सो द कोर्ट्स हैव एक्सप्रेस देयर कंसर्न कि दिस टाइम इज़ नॉट रीजनेबल टाइम. सो रीजनेबल टाइम के अंदर उनको डिसाइड करना चाहिए. अब हम बात करते हैं अपनी केस स्टडी के बारे में जो हमने देखना है यहाँ पर. 2019 का जो रिसेंट हमारे सामने केस स्टडी है, कर्नाटक की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर करीबन 17 के करीब जो एमएलएज थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर और इसके कारण एंटी डिफेक्शन लॉ जो है फिर से न्यूज़ में था, फिर से इस पर कंट्रोवर्सी उठी थी. So the case went to the courts and the name of the case is Shrimant Patil and others versus Speaker of Karnataka Legislative Assembly. 2019 का केस है and they were disqualified by the speaker and the disqualification was challenged before the Supreme Court. So आइए देखते हैं क्या मुद्दा था, क्या controversy थी and what was the decision that the Supreme Court gave. So let's first understand what was the issue. See, कर्नाटक की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके कुछ मेंबर्स ने डिफेक्ट किया और फिर से डिफेक्शन करने के बाद, बेसिकली डिफेक्शन नहीं कहेंगे पर से रेजिग्नेशन दिया उन्होंने और स्पीकर ने उनके इस रेजिग्नेशन को डिफेक्शन करार देते हुए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया. एंड बट उन्होंने दोबारा से बाईपोल के इलेक्शन रिकंटेस्ट करे और फिर से मेंबर बन गए 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम अ डिफरेंट पार्टी. सो कर्नाटक बाई इलेक्शन रिजल्ट्स दे हैव वाइडली पुट अप टू डिस्प्ले द इनइफेक्टिवनेस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ. जब बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और जो मेंबर्स जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था वो दोबारा से इलेक्शन लड़के रिकंटेस्ट कर जीत गए और फिर से मेंबर्स बन गए 6 महीने के अंदर अंदर. सो दिस हैज़ शोन टू द entire India, entire nation that how ineffective this anti defection law is. तो बेसिकली कर्नाटक के एमएलएज ने जो किया, उन्होंने बेसिकली एक लूप होल का फ़ायदा उठाया. लॉ में लूप होल था, उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने इसको बाईपास किया. सो इसके पीछे की क्या स्टोरी है इसको थोड़ा सा देखते हैं. करीबन 17 के करीब जो डिफेक्टिंग कांग्रेस जनता दल के एमएलएज थे, ठीक है. सो इन्होंने डिफेक्ट किया और इनमें से 11 जो है वो दोबारा से री इलेक्ट हो गए बीजेपी के टिकट से. सो इवेंट्स कुछ इस तरीके से हुए कि उन्होंने लॉ को साइड स्टेप किया, लूप होल का फ़ायदा उठाया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिजाइंड एज द एमएलए. पहले तो उन्होंने कांग्रेस जनता दल के एमएलए जो चुने गए थे उन्होंने अपनी सीट से रिज़ाइन किया बिकॉज रेजिग्नेशन फ्रॉम द सीट इज़ नॉट अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन. सी, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. एक होता है रेजिग्नेशन फ्रॉम द सीट, रेजिग्नेशन फ्रॉम द सीट यानी वो एमएलए की सीट से उन्होंने रिज़ाइन किया. एंड वन थिंग इज रेजिग्नेशन फ्रॉम द पार्टी.
सो देखिए डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है अगर आप पार्टी से रिजाइन करते हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अपनी एमएलए की सीट से रिजाइन कर देना, दिस इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। यही लूप होल है जिसका फायदा उठाकर ये डिफेक्शन से बचकर इन एमएलए ने दोबारा दूसरी पार्टी से रिकंटेस्ट करा इलेक्शन और जीत गए बायपोल के इलेक्शन में। सो इसी लूप होल को एक्सप्लॉइट किया इन्होंने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिजाइन देयर एमएलएज सीट्स एंड ऑल दिस एक्ट, ये जो रेजिग्नेशन का जो सारा एक्ट था, दिस वॉज एम्ड एट एंडिंग द मेजॉरिटी ऑफ रूलिंग कोलिशन एंड एट द सेम टाइम अवॉइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन। तो रिजाइन कर एक तो जो रूलिंग कोलिशन बना था उसको उन्होंने हिला दिया, गिरा दिया, साथ ही साथ डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच गए ये लोग, डिस्क्वालीफाई होने से भी बचा लिया इन्होंने खुद को। सो स्पीकर जो था असेंबली का, कर्नाटक असेंबली का, उन्होंने ये रेजिग्नेशन लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया एंड ही डिक्लेयर्ड देम डिस्क्वालीफाइड। So they challenged this decision of the speaker before the Supreme Court. So this was possible, ये देखिए स्पीकर ने जो किया, इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल बिकॉज द लॉ एम्पावर्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस टू डिसाइड ऑन कंप्लेंट्स ऑफ डिफेक्शन अंडर नो टाइम कंस्ट्रेंट, कि वो किसी भी टाइम, कोई टाइम पीरियड नहीं है तो उसके टाइम जितना अपना स्वीट टाइम ले सकता है उस हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है। हो सकता है वो पहले रेजिग्नेशन ना ले और पहले डिफेक्शन पर डिसाइड करे, तो वो उसने पहले डिफेक्शन पर डिसाइड करते हुए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी, अपना डिसीजन दिया, तो वहाँ पर जो मेन जो मुद्दा था वो ये था कि 10th शेड्यूल वर्सेस रीकंटेस्टिंग इलेक्शंस, कि ऐसा ये इन्होंने दोबारा इलेक्शंस कंटेस्ट किया और ये जीत गए, डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच गए। सो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिस्क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बात क्लियर कर दी कि स्पीकर ने जो डिस्क्वालीफाई इनको किया है, जो डिसिडेंट लेजिस्लेचर्स थे, दिस इज करेक्ट, ये डिस्क्वालिफिकेशन बिल्कुल सही है, लेकिन जस्ट बिकॉज दे आर डिस्क्वालीफाइड दैट डज नॉट आउस्टर देम, that does not a bar upon them from contesting by polls। तो कोर्ट ने बोला दैट जस्ट बिकॉज कि इनको आउस्टर कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है, तो इससे इन पर रोक नहीं लगती, बार नहीं लगता कि ये दोबारा रिकंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शंस। एंड अकॉर्डिंग टू द कोर्ट नीदर द कॉन्स्टिट्यूशन, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा लिखा है, ना ही स्टैट्यूटरी लॉ या स्टैट्यूटरी स्कीम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कुछ ऐसा लिखा है, ना ही एंटी डिफेक्शन लॉ में कहीं ऐसा लिखा है कि इन पर बार लग जाएगा कि ये दोबारा बाईपोल के इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। सो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की। Now let's understand one more question which is very important. Can MLAs or MPs facing disqualification be tried under the anti-defection law even after they resign? See, this question is specific to the Karnataka Assembly case that we have just understood कि जो MLAs disqualification face कर रहे हैं स्पीकर के द्वारा, क्या उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ट्राई किया जा सकता है फॉर डिफेक्शन फॉर इवन आफ्टर दे हैव रिजाइन। सपोज किसी एमपी ने या एमएलए ने, सपोज यहाँ पे कर्नाटक का एग्जांपल लेते हैं, एमएलए ने पहले रिजाइन किया और बाद में उनको डिफेक्शन के ग्राउंड पे स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो क्या ये पॉसिबल है कि उनको रेजिग्नेशन देने के बाद भी, सी रेजिग्नेशन नॉट फ्रॉम द पार्टी, रेजिग्नेशन फ्रॉम द सीट, उन्होंने अपनी एमएलए की सीट से ही रिजाइन कर दिया, क्या रेजिग्नेशन देने के बाद भी इनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ट्राई किया जा सकता है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन? सो एक तरीका जो होना चाहिए यहाँ पे वो ये कि जिस तरीके से जजेस का रिमूवल होता है, सी जजेस का रिमूवल का जो प्रोसेस है वो क्या है कि अगर रिमूवल प्रोसीडिंग्स यानी इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स किसी जज के खिलाफ अगर इनिशिएट की जाती हैं और जज अपने आप अपनी मर्जी से उस वक्त रिज़ाइन कर देता है, इफ़ ही चूजेस टू रिज़ाइन, तो जो रिमूवल की प्रोसीडिंग्स उस जज के खिलाफ शुरू हुई हैं, इनिशिएट की गई हैं, दे विल इमीडिएटली एंड, दे विल ऑटोमेटिकली एंड। सो इसी हिसाब से ऐसे केसेस में होना ये चाहिए कि एक बार किसी एमएलए ने रेजिग्नेशन दे दिया और वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया तो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जानी चाहिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दैट वी शुड टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम द कंपनी लॉ। देखिए कंपनी लॉ में क्या होता है, वेयर इवन आफ्टर अ पर्सन हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट एज अ डायरेक्टर, अगर किसी पर्सन ने डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, लेकिन अगर जब वो डायरेक्टर था सो उस वक्त अगर कुछ भी उसने मिसरिप्रेजेंटेशन किया या जब वो डायरेक्टर था तो कोई कंपनी में फ्रॉड हुआ, ही विल स्टिल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शंस दैट ही टुक एज अ डायरेक्टर। और ये बात सेक्शन 168 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट मेक्स इट वेरी क्लियर कि डायरेक्टर जो है
वो अपने एक्ट्स के लिए लाइबल है जो उसने अपने रेजिग्नेशन से पहले भी किए हैं। तो या तो ये वे फॉरवर्ड होना चाहिए, और इट कैन ऑल्सो हैपन that the speaker accepts the resignation when it is tendered on the belief that the same has been tendered in a bona fide fashion। देखिए, तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि स्पीकर को जब रेजिग्नेशन दिया गया है वो एक्सेप्ट कर ले और वो मान ले कि ये जो रेजिग्नेशन है ये वॉलंटरली है, बोनाफिडे है, कुछ इसमें मैलाफिडे या मैलिस इन्वॉल्व नहीं है। बट बाद में अगर उसको लगता है, इफ़ ही कम्स टू रियलाइज कि कोई मेलाफिडे रीज़न था या दबाव में आकर रेजिग्नेशन दिया गया है या किसी अल्टीरियर मोटिव के लिए रेजिग्नेशन दिया गया है, देन ही कैन टेक ड्यू एक्शन। So these are the three possible ways that could be followed in such cases. Now we have seen the problems with the law, loopholes क्या हैं, किस तरीके से उन loopholes को exploit कर रहे हैं जो MLAs and MPs हैं। See, first of all we have to understand that defection is a political problem. Defection is a political problem and इस political problem का solution अगर आप law देकर निकालेंगे तो you will not get much success. Political problem requires a political solution, not a legal solution actually. So इसमें लॉ बनाकर जो इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, डिफेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, द रीज़न कि इतना सक्सेसफुल नहीं रहा और अभी भी लूप होल्स हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं MLAs. So the reason is this, that this is a political problem and you're trying to solve it by law. So this law is not effective so much and it needs certain improvements. Some recommendations have been given to improve the law. Let's see what are those recommendations. So सबसे पहले तो दिनेश गोस्वामी कमेटी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1990 में, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि एंटी डिफेक्शन लॉ शुड बी अप्लाइड ओनली इन केसेस ऑफ वेयर कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशंस आर पास्ड। सिर्फ वहीं पे अगर उस वक्त कोई डिफेक्ट करता है तब उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए इस लॉ के तहत। और दूसरी रिकमेंडेशन लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट जो 1999 में उन्होंने रिलीज की थी उसमें दी, दैट दिस एंटी डिफेक्शन लॉ शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द गवर्नमेंट इज इन डेंजर। जब गवर्नमेंट की मेजॉरिटी जो है वो खतरे में है तब इस लॉ को यूज़ करना चाहिए। Another recommendation that has been put forward is that instead of making the speaker the authority for disqualification, कि स्पीकर को मेन अथॉरिटी बनाने से बेहतर है कि ये डिसीजन डिस्क्वालिफिकेशन का प्रेसिडेंट या गवर्नर के हाथ में दे देना चाहिए। सो इन केस ऑफ MPs, president should decide the question of disqualification and in case of MLAs the governor and on the advice of election commission। तो इन तीन को इन्वॉल्व हमें यहाँ पे करना है, प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड इलेक्शन कमीशन, बिकॉज ये सेम प्रोसेस जो है डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसीजर है ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी मेंशन्ड है। सो ये बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस हो जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ में भी बिल्कुल वही प्रोसीजर अगर हम फॉलो कर लेते हैं जो RP एक्ट में गिवन है। एक और रिकमेंडेशन जो दिया जाता है दैट देयर शुड बी एडिशनल पेनल्टीज फॉर डिफेक्टर्स, कि बिसाइड्स डिस्क्वालिफिकेशन कुछ एडिशनल पेनल्टीज भी लगा देनी चाहिए डिफेक्टर्स पे, सो दैट इट विल एक्ट एज अ डेटरेंस for the possible defectors. So this was all in this video. I hope you have understood the entire defection law and जो भी major controversies हैं, किस तरीके से question पूछा जा सकता है। See, this can be asked even in the interviews because this is a very current issue and constantly ये news में रहता है, political भी है और legal भी है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दी इशू एंटायरली, क्या क्या कमियां हैं लॉ में। इसको इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू क्रिएट अ फुल फ्लेज आंसर ऑन दिस इशू अगर किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके ये आता है। सो इवन अ जनरल आइडिया जो है आपको मिल गया होगा इस प्रेजेंटेशन से, इस वीडियो से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।